স্যার 1 মিনিট ওয়েট করুন, 1 মিনিট, আরো স্টুডেন্ট জয়েন করছে। Fine, no problem. হ্যাঁ স্যার, আমরা স্টার্ট করতে পারি এবার। Okay, good evening everyone who have joined over here. I am Kumar Singh Roy. I am the biology faculty at Rajiv Classes, which you all know is Kolkata's first quota-based institute. And I am also associated with different colleges. I am a full-time microbiology professor in St. Paul's Cathedral Mission College. I had cleared NET and NEET both. And post clearing the NET, I had done research for around 7 years. And if any one of you is interested, you can just type my name in Google. You can Google my name. You can write Kumar Singh Roy in Google, and you can see my research work, because I have done extensive research on microbiology, and I have also done extensive research on cancer biology and inflammatory disorders. In fact, I have, me and my co-workers together, we have also found out a patent medicine which we had, extracted out from a plant which is known as ashwagandha, and we had named it Vidiferin A. So luckily, we have also been able to patent this medicine in the market, and it's commercially available these days. Okay. So anyway, that's not a matter of concern. If anyone is interested, then you can just type my name, and you can have a look at the type of research work that I have done. Anyway, let's start. And the topic that I've selected today is excretion. Okay, जो topic मैंने आज select किया है, that is excretion. It's one of the very interesting topics from human physiology. Okay, excretion मैंने इसीलिए select किया है क्योंकि थोड़ा सा idea तुम लोगों को already है excretion के बारे में since your class 9 and 10 days. ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? कोई मुझे अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ. I want the class to be interactive. ओके, यहाँ पर कोई कुछ माइंड नहीं करेगा, या फिर यहाँ पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुम एग्जैक्ट आंसर दोगे. इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन अगर मेरे साथ तुम लोग डिस्कस करोगे, इफ इट्स अ डिस्कशन बेस्ड क्लास, देन तुम लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और मैं भी बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा. सो इफ यू ऑल इंटरैक्ट विथ मी मोर, then I think the class will be a better success. So जब मैं ये term लिखता हूँ excretion, तुम लोगों को क्या पता है excretion के बारे में? Excretion चीज क्या है? What is excretion? Sir, can I attempt this? Definitely, everyone should attempt. Bolo, Jyotika, bolo. Sir, I think that excretion is simply to define, it's a process by which the undigested food of a body or undigested materials of a body is eliminated from the body in different forms. You could tell it like, we know that there are many forms of excretion. Okay, fine. So you're saying कि ये जो हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बॉडी किस वे में मतलब रिलीज करेगा बॉडी से, उसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे. This is what Jyotika is saying. Yes, sir. Okay, in various methods you can do that. Okay, anyone else? Anyone else? Any other idea about excretion? Okay, I'll just tell you something. Acha, can you see the board that I'm writing in? Can you all see the board? See, I'm writing something in a blackboard. ठीक है, बस. तो देखो,
ज्योतिका, तुम्हारा पॉइंट जो है, तुमने एक्सक्रीशन नहीं बोला, तुमने बोला है इजेशन, एंड दैट इज व्हाई आई हैव आस्क्ड यू। इजेशन के साथ बहुत टाइम एक्सक्रीशन को हम कंफ्यूज कर लेते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही ये करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो जब हम हमारे बॉडी से रिलीज आउट करते हैं, दैट इज नोन एज इजेशन, इट इज नॉट नोन एज एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन मतलब सिर्फ फूड को जब हम खाते हैं, उसको अनडाइजेस्टेड फूड को हमें निकालना नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। देर आर मेनी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमारे बॉडी से निकालना पड़ेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, काफी अमाउंट ऑफ सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो चीजें हैं, हमारा बॉडी जब इन चीजों को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और जब अनडाइजेस्टेड फूड आ जाता है, हाँ, वो भी अनवांटेड है, लेकिन जब वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलता है, जब वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलता है, उसको हम कहते हैं इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। दैट इज डिफरेंट। एंड excretion is different because excretion means the elimination of metabolic waste. Have you understood? Okay, Right. sir, fine. यहाँ पर हम एक्सक्रीशन के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब देखो, एक चीज याद रखने लायक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं। स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, वी हैव माइक्रोमोलिक्यूल्स, वी हैव मैक्रोमोलिक्यूल्स, एंड उनमें से एंड दीज आर मेड ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सब है। ओके, बट इनमें से एक जन है विच इज नाइट्रोजन, which is very toxic to our body. Nitrogen, you need to remember, is very toxic. हमारे बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है नाइट्रोजन। देखोगे, मैं जस्ट कॉमन एग्जांपल तुम लोगों को बता रहा हूँ कि आई थिंक आजकल जो हेयर कलर्स होते हैं, वेदर यू हैव सीन दिस और नॉट, इफ योर पेरेंट या फिर घर में कोई अगर हेयर कलर करता है, तो फिर देखो कि जब हेयर कलर वो करते हैं, हेयर कलर से एक बहुत ऑब्नॉक्शियस स्मेल आता है, एक पंजेंट बहुत एक स्मेल आता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट कि जो हेयर कलर होता है उसमें से एक बहुत पंजेंट एक स्मेल आता है? डिड यू एवर ऑब्जर्व दैट? Yes, sir. यस। क्यों आता है उसमें? Yes, sir. यस, उसमें अमोनिया रहता है। क्यों रहता है? एंड ये जो अमोनिया है, ये बहुत टॉक्सिक है। तो आजकल देखो, आजकल जो नए बेटर हेयर कलर्स होते हैं, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ अ हेयर कलर बिकॉज यू ऑल आर एक्वेंटेड विद हेयर कलर, इसीलिए मैं हेयर कलर की बात कर रहा हूँ। तो आजकल ऑल्टरनेटिव हेयर कलर आ गया है मार्केट में, और वहां पर लिखा हुआ रहता है अमोनिया फ्री हेयर कलर। सो नाइट्रोजन, ये जो रिड्यूस्ड फॉर्मेट ऑफ नाइट्रोजन है, विच इज अमोनिया, this is very toxic to our cells. It is very toxic to the biological system. तो इसीलिए अभी alternatives, anything that contains ammonia is very toxic. तो इसीलिए, और हमारे बॉडी में भी अगर जब वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड होता है, तो अमोनिया के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और वो भी हमारे बॉडी में बहुत टॉक्सिसिटी इंक्रीज करता है, और हमको इस अमोनिया को रिलीज करना है। सो जनरली जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, डेफिनेटली हम कार्बन डाइऑक्साइड, डेफिनेटली हम वाटर, डेफिनेटली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, डेफिनेटली और भी बहुत चीजों को एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मेन हमारा एम रहना चाहिए, या फिर हर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका एम रहता है नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकालना। नाइट्रोजन कंटेनिंग मेटाबॉलिक वेस्ट, इसको हमें किसी भी एनिमल को पहला काम क्या करना चाहिए? इसको बॉडी से निकालना पड़ेगा या एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। और बॉडी के अंदर कहाँ पर अमोनिया रहता है, नाइट्रोजन कहाँ पर रहता है? नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, मेनली इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, एंड इट इज also a part of our nucleic acids. So ammonia or nitrogen is a part of proteins, and it is also part of nucleic acid as in DNA and RNA. और हमारे बॉडी में जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है, तब ये जो नाइट्रोजन रहता है प्रोटीन के अंदर, या फिर ये जो नाइट्रोजन रहता है डीएनए और आरएनए के अंदर, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. This nitrogen
it gets reduced into ammonia, and this ammonia is very 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 toxic to our body, and hence it needs to be excreted out of the body. So we are more interested today in our class, we will be discussing the different ways in which an organism can excrete out nitrogenous waste material. अब ये जो, अब देखो जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को ये दिमाग में आ जाता है कि ह्यूमन बींग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ह्यूमन बींग्स डोंट इंक्लूड दे डोंट कंस्टिट्यूट द एंटायर बायोलॉजिकल सिस्टम। हमें स्टार्टिंग फ्रॉम अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड वी नीड टू कंटिन्यू टिल ह्यूमन बींग्स, राइट? तो छोटे छोटे एनिमल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और ह्यूमन बींग्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि एक सेल को या फिर एक बॉडी को नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिलीज करना पड़ेगा। अब अच्छी तरीके से देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट जब बॉडी में क्रिएट होता है, वो कौन से फॉर्मेट में क्रिएट होता है? NH3 के फॉर्मेट में क्रिएट होता है। और मैंने क्या बोला है, ये जो NH3 होता है, दिस इज वेरी वेरी टॉक्सिक इन नेचर। ओके, दिस इज वेरी वेरी टॉक्सिक इन नेचर। अब एक चीज समझो, डिपेंडिंग ऑन द टॉक्सिसिटी, तो फिर अगर ये बहुत टॉक्सिक है, कैन यू स्टोर इट इन द बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? शुड यू स्टोर इट इन द बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? ज्यादा No, देर? sir. नो सर। नो। तो अगर मुझे स्टोर नहीं करना है, तो फिर जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को बनाएगा, उसको इमीडिएटली बॉडी से उसको रिलीज करना पड़ेगा। इमीडिएटली ये अमोनिया बना एंड इमीडिएटली मुझे अमोनिया को बॉडी के बाहर डिफ्यूज आउट करवाना पड़ेगा। डू वी अग्री? Yes, sir. ओके, तो अच्छा, अब ये एक सिचुएशन मैंने तुम लोग को बताया। अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, हमारे बॉडी में तब कभी ऐसा देखा है कि एज सून एज हम प्रोटीन खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और इमीडिएटली हम हमारे बॉडी से अमोनिया रिलीज करते हैं? कैन वी डू दिस? आर वी केपेबल ऑफ डूइंग दिस? So immediately it's not possible, I think. It's not possible. It is not possible. So if you are trying to excrete out ammonia, then you need to excrete out immediately. ये है पॉइंट नंबर 1। और अगर तुम इसको इमीडिएटली एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाते हो, तो फिर और एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो तुम एक काम करो, इस अमोनिया को कन्वर्ट करो, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दो इनटू समथिंग दैट इज लेस टॉक्सिक, जो लेस टॉक्सिक होगा बॉडी के लिए। क्योंकि तुम इमीडिएटली तो इसको बॉडी के बाहर रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो जितना देर वो तुम्हारे बॉडी में रहता है, सो दैट वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट ना दिखा पाए, दैट इज व्हाई व्हाट यू नीड टू डू इज, तुम इसको किसी और चीज में कन्वर्ट करो। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर तुम्हें बॉडी से अमोनिया को रिलीज करना है, अगर तुम्हारे बॉडी में अमोनिया बनता है, किसी भी एनिमल के, तुम्हारे मतलब किसी भी एनिमल के बॉडी में जब अमोनिया बनता है, बिकॉज अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अमोनिया को इमीडिएटली बॉडी के बाहर रिलीज करना पड़ेगा। और अगर तुम इमीडिएटली बॉडी के बाहर रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या करोगे? उस अमोनिया को किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट करो दैट इज लेस टॉक्सिक, which is relatively less toxic to the body, क्योंकि तुम्हें उसको स्टोर करना है बॉडी के अंदर। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? अब देखो, अब क्वेश्चन है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स इसको इमीडिएटली रिलीज आउट कर पाते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स इस अमोनिया को इमीडिएटली रिलीज आउट कर पाते हैं? एनी आइडिया? कोई मुझे बता पाओगे? Does anyone know? Okay, I'll tell you. Fishes. जो फिश होते हैं या फिर एनी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो ये सपोज उनका बॉडी है, तो बॉडी के अंदर ये अमोनिया बना और इमीडिएटली वो एक मॉलिक्यूल बना और इमीडिएटली बॉडी के बाहर डिफ्यूज कर दिया। अब तुम लोग को एक चीज समझ में आना चाहिए कि बॉडी के अंदर तो अमोनिया बना है और बॉडी से उस ऑर्गेनिज्म ने इमीडिएटली अमोनिया को रिलीज आउट भी कर दिया है, अच्छी बात है। लेकिन जब हम इसको एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, तो फिर एनवायरनमेंट में भी तो ये टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा। इट विल बी टॉक्सिक टू द एनवायरनमेंट आल्सो। मेरे बॉडी के लिए ये अमोनिया टॉक्सिक है, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में हम अमोनिया को रिलीज कर रहे हैं, वहां पर भी तो ये टॉक्सिक है। तो कैसे हम रिलीज कर पाएंगे? या फिर एक फिश कैसे रिलीज कर पाएगा?
यहाँ पर एक चीज है, बिकॉज जो फिश है इट इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो पानी के अंदर रहता है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एज सून एज इट इज फॉर्म, बिकॉज वो पानी के अंदर रिलीज होता है, वो अमोनिया क्या हो जाता है, अमोनिया इज वेरी वेरी सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल होता है, अमोनिया इट इज वेरी वेरी सॉल्यूबल इन वाटर, और ये जो अमोनिया है ये पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, और ये जो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन है ये डाइल्यूट हो जाता है। अगर अमोनिया डाइल्यूट हो जाता है तो फिर इसका टॉक्सिसिटी लेवल भी घट जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir, but I cannot understand that how in or by which process the fishes just transfer or exhale the ammonia from their body. Means what By is the diffusion. process? ठीक है, बाय डिफ्यूशन, ये बॉडी के अंदर बना और बॉडी के अंदर इसका मतलब अमोनिया ज्यादा है, बाहर अमोनिया कम है, बॉडी से बाहर ये गैसियस अमोनिया रिलीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूशन। Okay, sir. सर यस सर तो ये तो फिश का हुआ बस, तो मतलब ह्यूमन का तो वो तो सॉल्युबल तो वाटर, वो मतलब एटम में तो वाटर ही नहीं है तो रिलीज कर रहा है तो फिर उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजनस वेस्ट एक ऑर्गेनिज्म को रिलीज करना है, तो अगर वो अमोनिया रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और अगर वो अमोनिया रिलीज नहीं कर पाता है वो तो उसको अपने बॉडी के अंदर स्टोर भी नहीं कर पाएगा क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है, तब वो क्या करता है, इसी अमोनिया को कन्वर्ट कर लेता है into something that is less toxic, into either it converts it into urea or it converts it into uric acid. So देखो, these are the three major nitrogenous waste material that an organism can release into the environment. एक ऑर्गेनिज्म NH3 पहले बनता है, अमोनिया ही पहले बनता है, हर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अमोनिया ही बनता है। अगर उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म है कि एज सून एज अमोनिया इज फॉर्म मैं इमीडिएटली उसको बॉडी के बाहर रिलीज कर दूंगा, अगर ये मैकेनिज्म उसके बॉडी के अंदर है तो फिर वो अमोनिया ही रिलीज करता है, और उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और अगर वो अमोनिया रिलीज नहीं कर पाता है देन वो तो उसके बॉडी के अंदर उसको स्टोर भी नहीं कर पाएगा। व्हाई कैन इट नॉट स्टोर इन द बॉडी? बिकॉज अमोनिया इज टॉक्सिक टू द बॉडी। सो कन्वर्ट अमोनिया इनटू समथिंग दैट इज लेस टॉक्सिक। इसी अमोनिया को किसी लेस टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट करो, तो आइदर यूरिया में कन्वर्ट करो या फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट करो। तो अगर यूरिया में कन्वर्ट, इफ यू कन्वर्ट द अमोनिया इनटू यूरिया देन यूरिया इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी, और जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया रिलीज करते हैं उनको कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। These are known as ureotelic organism, and those organisms which release uric acid, they are known as uricotelic organism. Okay, so what did I say? How many classes depending on the nitrogenous waste material that the organism releases? कितने classes होते हैं? How many classes of organisms? Tell me. Three. What are they? सर यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमाइनोटेलिक। Okay, अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया। यूरिया एंड यूरिक एसिड। नहीं, अमोनोटेलिक Ammonia, अमोनिया रिलीज करता है। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या रिलीज करता है? urea, यूरिया। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या रिलीज करता है? uric Uric acid. यूरिक एसिड। और ये क्या चीज रिलीज करेगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है? एमोनिया। नहीं, अमोनिया नहीं, टॉक्सिसिटी के ऊपर। टॉक्सिसिटी के ऊपर। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है वो अमोनिया को इमीडिएटली रिलीज कर पाता है, और अमोनिया जब एनवायरनमेंट में रिलीज होता है तब क्या होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड, इट गेट्स डाइल्यूटेड। जो अमोनिया इमीडिएटली बॉडी के अंदर, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो अमोनिया रिलीज करते हैं, और ये जो अमोनिया वो बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, बिकॉज बाहर क्या है, सिर्फ पानी है। पानी है, सपोज तुमने 1 चम्मच चीनी लिया, उसके अंदर 2 लीटर पानी डाल दिया, तो चीनी का स्वाद तो डेफिनेटली डाइल्यूट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है,
कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया बना, वो लोग पानी में रहते हैं, वो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, सी वाटर में रह सकते हैं, और इमीडिएटली जैसे ही अमोनिया बना, बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है कि डिफ्यूजेस आउट ऑफ द बॉडी, तो ये अमोनिया डाइल्यूट हो गया। ठीक है, अब देखो, ये चीज कि वो क्या रिलीज करेगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? फर्स्ट पॉइंट इज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा टॉक्सिक, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक, यूरिया इज लेस टॉक्सिक, यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक, अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, यूरिया इज अमोनिया से 1000 गुण कम टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड उससे भी 1000 गुण कम टॉक्सिक होता है। तो पहला चीज है टॉक्सिसिटी। तो अगर एक चीज टॉक्सिक है, तुम उसको बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर कर पाओगे क्या? नो सर। No. No, sir. So the first point is toxicity. The second point is time of excretion. कितना जल्दी तुम उसको excrete out कर पाओगे? तो जो ज्यादा टॉक्सिक है उसको बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, और जो कम टॉक्सिक है उसको बॉडी के अंदर धीरे धीरे तुम रिलीज कर पाओगे। थर्ड पॉइंट क्या है? तुम्हें अमोनिया को पानी के अंदर रिलीज करना है। इसका मतलब अगर तुम्हें अमोनिया रिलीज करना है, देन वाटर सॉल्युबिलिटी इज द थर्ड फैक्टर, एंड वाटर अवेलेबिलिटी। तो सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज कर पाएंगे जो एक फर्स्ट पॉइंट इमीडिएटली रिलीज कर पाएंगे, सेकेंड पॉइंट जब वो रिलीज होगा उसको पानी में रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि पानी में वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इन सारे पॉइंट्स को इफ आई कंसीडर ऑल दिस पॉइंट्स, ओनली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कैन रिलीज अमोनिया। अब जो ऑर्गेनिजम्स को उतना पानी अवेलेबल नहीं है, जैसे हम वी ह्यूमन बीइंग्स या फिर बाकी जितने भी मैमल्स हैं या फिर एनी लैंड ऑर्गेनिजम्स, जिनको पानी तो मिलता है लेकिन ज्यादा पानी नहीं मिलता है, कभी ज्यादा मिल सकता है कभी कम मिलता है, राइट? तो वो क्या रिलीज करेंगे? यूरिया रिलीज करेंगे। और जिन ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल ही पानी नहीं मिलता है, दे लिव नियरली इन एब्सेंस ऑफ वाटर और वेरी लेस वाटर, वो क्या रिलीज करेंगे? यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। तो ये हो गया क्राइटेरिया कि क्या रिलीज करेंगे हम। अब थोड़ा सा तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में तो हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ लिया। लेट्स टॉक अबाउट यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। वो क्या करता है? अमोनिया को इमीडिएटली यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी में अमोनिया यूरिया में कहां पर कन्वर्ट होता है? डज एनीवन नो दिस? हमारे बॉडी किडनी। नो किडनी यूरिया रिलीज करने में हेल्प करता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्योतिका ऑप्शन है The liver. হবে। अच्छा बोलो The liver. लिवर, गुड, लिवर। तो ये जो हमारे बॉडी में, इसीलिए बोलते हैं ना कि लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करने के लिए लिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमारा बॉडी टॉक्सिन रिलीज नहीं कर पाता है, क्या बन जाता है? उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जॉन्डिस। ओके सो सी द ब्यूटी इज, अमोनिया कैसे कहां से फॉर्म होता है? प्रोटीन से फॉर्म हो सकता है। हमारे बॉडी में अमोनिया न्यूक्लिक एसिड से फॉर्म होता है। हम जितना प्रोटीन खाते हैं इतना प्रोटीन खाते हैं। अच्छा, एक चीज तुम लोग देखोगे कि द एल्डर पीपल, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस और नॉट, बहुत जनों को पैर में बहुत दर्द होता है, और बंगाली फैमिलीज में तो बहुत ही कॉमन है, और कहते हैं कि यूरिक एसिड बेरे छे। कभी सुना है ये? हाँ No, सर। sir. अच्छा, ज्योतिका इज सेइंग यस। एटलीस्ट तुम देखोगे पेरेंट्स से पूछोगे होता है, और तब इमीडिएटली उनको क्या कहा जाता है? क्या खाने को मना किया जाता है? माटिर तलर जिनिस खाबे ना, प्रोटीन्स नहीं खाओगे। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो प्रोटीन के अंदर रहता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पहले अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और यही अमोनिया दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, I'll write NH2 and H2, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एक CO के साथ लिंक होके
इसी को कहते हैं हम यूरिया। और यही यूरिया फिर यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट हो पाता है, और ये यूरिक एसिड जाके हमारे जॉइंट्स में, बोले बात, बंगाली में कहते हैं बात, बातेर बैठा। तो जिनको यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, उनको पहले का फर्स्ट थिंग दैट दे से इज प्रोटीनेशियस खाना खा, प्रोटीन कम खाओ। प्रोटीन खाना नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी से तुम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसीलिए बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। वो जो मसूर का दाल होता है वो नहीं खा पाओगे। उसके बाद कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, रेड मीट नहीं खा पाओगे, चिकन खाना थोड़ा सा रिलेटिवली बंद करना पड़ेगा, अंडा का व्हाइट पोर्शन नहीं खा पाओगे। सो ये सब रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो मेनली क्या है, हम अपने डाइट में जो खाते हैं, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि हम हमारे डाइट में जो खाते हैं उसके अंदर जो स्पेशली जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड रहता है, वहां से नाइट्रोजन रिलीज होता है, और वो नाइट्रोजन हमारे बॉडी में उसको हम यूरिया में कन्वर्ट करता है। कौन यूरिया में कन्वर्ट करता है? पहले तो एवरी सेल हैज द कैपेसिटी टू कन्वर्ट इट इनटू अमोनिया, और ये जो अमोनिया है, देन यू हैव द लिवर विद द हेल्प ऑफ अ साइकिल विच इज नोन एज, कहीं कहीं पर कोरी साइकिल लिखा रहता है, कहीं कहीं पर यूरिया साइकिल लिखा रहता है। सो यूरिया साइकिल यूज करके हम इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेंगे। तो लिवर कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में। मैंने पहला चीज क्या बोला है कि हमारे बॉडी में ये मैकेनिज्म है ही नहीं। आई डोंट हैव द मैकेनिज्म कि हमारे बॉडी में अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि अगर हमारे बॉडी में अमोनिया बना है, उसको ऐसे चीज में कन्वर्ट करो जो लेस टॉक्सिक है, तो हमारा बॉडी उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट यूरिया में कन्वर्ट करता है? लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। और फिर आता है हमारा किडनी। किडनी क्या करता है? किडनी का एक बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में। किडनी नॉट ओनली डज इट रिलीज यूरिया, लेकिन वो और एक काम करता है। व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट इट कैन डू? इट कैन ऑस्मो रेगुलेट। अब इसका मतलब क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन बहुत वे में हो सकता है, लेकिन किडनी का पहले मैं समझा देता हूं। किडनी का जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो कुछ ऐसा होता है, तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर तुम बहुत ज्यादा पानी पीते हो तो फिर जो यूरिन हम रिलीज करते हैं वो डाइल्यूट यूरिन रहता है, एकदम वाटर की तरह यूरिन रहता है। और अगर कोई इंसान अगर कम पानी पीता है या फिर डेजर्ट कंडीशन में चला जाता है, कहीं घूमने गया है, डेजर्ट में गया है, या फिर बहुत वर्कआउट कर रहा है और उसका बहुत पानी लॉस हो रहा है फ्रॉम द बॉडी बाय स्वेटिंग एंड एवरीथिंग, या फिर पानी खुद कम पी रहा है वो पर्सन, तो फिर उसका यूरिन किस टाइप का होता है? क्या कलर हो जाता है उस यूरिन का? येलोइश। आई थिंक यू हैव नोटेड दिस। तो हमारे, तो देखो हमारे बॉडी में, आई डोंट नो वेदर यू पीपल नो दिस और नॉट, यू पीपल विल लर्न दिस इन केमिस्ट्री, दैट एक चीज का, एक केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन जब हम मेजर करते हैं उसको ऑस्मो मोल्स, मोलैरिटी, उसका मोलैलिटी इस टर्म में करता है। एनीवे, वो व्हाट आई वांट टू से इज मोर और लेस हमारे बॉडी में पूरे दिन में throughout the day around 600 milliosmoles of urea is formed in the body. Around 600 milliosmoles of urea is being formed in the body. Who helps to form it? My liver helps to form it. कहां से फॉर्म करता है? अमोनिया से फॉर्म करता है। अमोनिया कहां से आया है? नाइट्रोजनस वेस्ट से। नाइट्रोजनस वेस्ट कहां से आया है? प्रोटीन से। जो प्रोटीन हम खाते हैं वहां से। सो प्रोटीन का जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन NH3 में कन्वर्ट करो और NH3 को रिलीज करो, लेकिन हमारे बॉडी में कैपेसिटी नहीं है, तो हमारा लिवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अब देखो, अब हमारा किडनी क्या करता है? वो अभी बैठ के डिसाइड करता है कि हमारे पास क्या अच्छा अमाउंट ऑफ पानी है कि नहीं। अगर बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी है, तुमने काफी अमाउंट ऑफ पानी पिया है, या फिर तुमने यू आर स्वेटिंग लेस और यू आर इन अ कोल्ड कंडीशन जहां पर तुम्हारे बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, तो फिर क्या होता है? वही 600 मिलीऑस्मोल यूरिया को वो क्या करता है? जितना पानी तुमने पिया, अगर तुमने ज्यादा पानी पिया है तो फिर ज्यादा पानी के अंदर मिक्स करके बॉडी के बाहर रिलीज करेगा। और अगर तुमने कम पानी पिया है, इफ यू आर ड्रिंकिंग लेस वाटर, तो यूरिया तो खैर तुम्हें उतना ही रिलीज करना पड़ेगा। यू नीड टू रिलीज 600 मिलीऑस्मोल्स ऑफ यूरिया।
क्योंकि अगर तुम रिलीज नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारे बॉडी में टॉक्सिसिटी होगा। तो तब वो क्या करता है, उसी यूरिया को कम अमाउंट ऑफ वाटर में रिलीज करता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? व्हाट डिड आई वांट टू से? हमारे बॉडी में लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और ये जो यूरिया में कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट थिंग इज कितना वाटर अवेलेबल है। इस चीज के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन है। अगर जो वाटर अवेलेबल, इफ वाटर इज अवेलेबल इन गुड अमाउंट्स, ज्यादा पानी है हमारे बॉडी के अंदर, या फिर हमने ज्यादा पानी पिया है, या फिर एनवायरनमेंट में ज्यादा पानी है, तो फिर ज्यादा पानी के अंदर उतना ही अमाउंट ऑफ यूरिया को डिसॉल्व करके रिलीज देन द Okay, I'm sorry, this got disconnected. Can you hear me, everyone? Please respond. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो अगर हाँ, ठीक है, तो 600 मिली ऑस्मोल्स ऑफ यूरिया हमारे बॉडी में बनता है। तो अगर एनवायरनमेंट में या फिर हमारे बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ पानी है, तो फिर उसी यूरिया को ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी में घोल के डिसॉल्व करके बॉडी से बाहर रिलीज करो, देन द यूरिन इज डाइल्यूट यूरिन। और अगर पानी का अमाउंट बॉडी में कम है तो फिर क्या करोगे, उतने ही यूरिया को लेस अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके बॉडी से बाहर रिलीज करो, तब वही यूरिन हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन या फिर येलोइश यूरिन, क्योंकि ज्यादा कम अमाउंट ऑफ पानी में ज्यादा यूरिया डिसॉल्व। समझ में आ गया सबको? अच्छा, ये हो गया यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, सर्टेन रेप्टाइल्स। तो देखो बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं, दे जनरली आर एरियल ऑर्गेनिजम्स, हवा में उड़ते हैं या फिर जो ट्रीज होते हैं उनके बार्क्स में रहते हैं। सो बर्ड्स को एक प्रॉब्लम है, बर्ड्स को पानी का अवेलेबिलिटी काफी कम है, दे डोंट गेट गुड अमाउंट ऑफ वाटर। या फिर जो रेप्टाइल्स है, छिपकली जो होता है, या फिर देयर आर मेनी अदर रेप्टाइल्स आल्सो, देयर आर मेनी रेप्टाइल्स जिनको पानी का अवेलेबिलिटी काफी कम होता है। तो वो क्या करेंगे, what can they do? Can they release the nitrogenous waste immediately out of the body? Can they do that? I think so. No, sir. No, they cannot do that. वो immediately तो excrete out नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका पानी का अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो फिर उसको बहुत देर तक बॉडी में स्टोर करना पड़ेगा, बहुत देर तक उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो फिर वो बैठ के डिसाइड करता है कि अगर मुझे इतने दिनों तक या फिर इतने देर तक मुझे अगर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी के अंदर स्टोर करना है, तो मैं इसको ऐसे कुछ सब्सटेंस में कन्वर्ट करूंगा जो और भी लेस टॉक्सिक है, विच इज इवन लेस टॉक्सिक। ठीक है, तो फिर अमोनिया कौन रिलीज करता है, जो इमीडिएटली रिलीज करेगा और वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यूरियोटेलिक कौन है, जिसका वाटर का अवेलेबिलिटी है लेकिन वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन पानी का अवेलेबिलिटी इनफ है। ज्यादा पानी है तो ज्यादा पानी में डिसॉल्व करके यूरिया रिलीज करो, कम पानी है तो कम अमाउंट ऑफ यूरिया पानी में यूरिया को डिसॉल्व करके रिलीज करो। लेकिन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, सो व्हाट डू दे डू, दे कैन नॉट रिलीज यूरिया आल्सो, क्योंकि यूरिया के लिए भी एक अच्छा अमाउंट ऑफ पानी की जरूरत है, और बर्ड्स और रेप्टाइल्स के पास उतना अमाउंट ऑफ पानी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, what should they convert ammonia into? I have just told this to you. Uric acid. Uric acid, good. तो ये क्या करते हैं, इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड नियरली कोई टॉक्सिसिटी ही नहीं है उसका। यूरिक एसिड जो होता है ये बहुत कम टॉक्सिक है, इट्स वेरी 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 लेस टॉक्सिक, एंड बिकॉज इट इज वेरी लेस टॉक्सिक it can be stored inside the body for longer periods of time. काफी दिनों तक, कभी-कभी काफी दिनों तक
यूरिया को, यूरिक एसिड को बॉडी में स्टोर कर पाते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। और इनमें और एक ट्रिक भी है। अब देखो, बॉडी सिर्फ यूरिन के फॉर्मेट में पानी को रिलीज नहीं करता है। जब हम स्वेट करते हैं तब हम पानी रिलीज करते हैं, और एक कंडीशन में हम पानी रिलीज करते हैं। जैसे जुतिका वाज टॉकिंग अबाउट इजेशन, स्टार्टिंग में उसने कहा इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो तुम लोग देखोगे जो फीसेस होता है, जो अनडाइजेस्टेड फीसेस रहता है, उसके साथ भी बहुत गुड अमाउंट ऑफ पानी रिलीज होता है बॉडी से। जो फीसेस होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होता है, उसके साथ भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पानी हमारे बॉडी से रिलीज होता है। और इनफैक्ट तुम लोग देखोगे कि जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और ये है, what they do is that they start drinking lot of water so that they can clear their bowels. Why? Because bowel clearing के लिए बहुत good amount of water की जरूरत पड़ती है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है, जो मैं बर्ड्स की बात कर रहा हूँ या फिर जो मैं लिजर्ड्स की बात कर रहा हूँ, there are many other सर organisms। बाउल्स का मतलब? बाउल्स मतलब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहता है हमारे गट के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ओके सर। उसको बाउल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स और लिजर्ड्स है, ये तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बर्ड्स एंड लिजर्ड्स, इनको पानी का अवेलेबिलिटी कम है। और बिकॉज पानी का अवेलेबिलिटी कम है, वो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं भाई, हम इजेशन अलग से करेंगे, एक्सक्रीशन अलग से करेंगे, तो फिर तो हमारे बॉडी से बहुत पानी निकल जाएगा। सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? टेल मी, थिंक एंड टेल मी। Sir, repeat the question. ओके, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। देखो, बॉडी से किस किस मेथड में पानी रिलीज करते हैं हम, या फिर एनी ऑर्गेनिज्म? एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल रिलीज करने के टाइम में, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको भी रिलीज करने के टाइम में, और ये जब वो स्वेट करता है। अब बर्ड्स एंड लिजर्ड स्वेट नहीं करते, तो फिर उनका इजेशन के टाइम में पानी निकलेगा बॉडी से, और एक्सक्रीशन के टाइम में भी पानी निकलेगा बॉडी से। लेकिन उनको लगता है अरे अलग से हम इजेशन करेंगे, अलग से हम एक्सक्रीशन करेंगे, तो बहुत ज्यादा पानी हमारे बॉडी से रिलीज हो जाएगा। सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? व्हाट कैन आई डू? व्हाट कैन द बर्ड्स एंड लिजर्ड्स डू? थिंक एंड टेल मी। ऐसे ही सोच के बताओ ना, साइंटिफिकली मत सोचो, नॉर्मली सोचो। दो अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी रिलीज हो रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और एक्सक्रीशन कर रहे हैं, इजेशन एक्सक्रीशन अलग अलग से कर रहे हैं, बहुत पानी रिलीज हो रहा है। तो सर सिर्फ इजेशन करते हैं। एग्जैक्टली तो ये क्या करते हैं, इजेशन और एक्सक्रीशन को कंबाइन कर लेते हैं। ये अगर उनका बॉडी है, तो बॉडी के बाहर और एक, मतलब ऐसा तो बॉडी नहीं होता है, जस्ट आई एम गिविंग यू अ ओवरव्यू। ये अगर उनका बॉडी है, बॉडी के बाहर, एग्जैक्टली बॉडी के बाहर एक ऐसा, क्या कहूं मैं इसको, एक जैकेट जैसा रहता है, एक जैकेट जैसा रहता है। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो भी यहाँ पर रिलीज होता है, और जो इजेशन का जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है वहां, वो भी यहाँ पर रिलीज होता है। लेकिन वो बॉडी के बाहर रिलीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके लिए पानी की जरूरत होती है। तो वो क्या सर करेंगे? पार्डन प्लीज। Yes. Did someone say something? सर पार्डन प्लीज। Repeat this. Yes. तो देखो, बर्ड्स और लिजर्ड्स में या फिर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उनमें क्या होता है, वो चाहते हैं कि वो अपने पानी का लॉस वो प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पानी का अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो अगर पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो तो अमोनिया रिलीज नहीं कर पाएंगे। और द सेकेंड थिंग इज, वो बहुत जल्दी भी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो वो अमोनिया को एक बहुत लेस टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, विच इज नोन एज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब देखो, उनके बॉडी में, बिकॉज वो पानी का लॉस प्रिवेंट करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो यूरिक एसिड है इसको, अच्छा ये अगर उनका बॉडी है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, I'll just rub this off। तो देखो, ये अगर उनका बॉडी है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। जनरली इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, अगर ये उनका बॉडी है, तो बॉडी के बाहर एक जैकेट जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है। दे हैव अ जैकेट लाइक स्ट्रक्चर। बॉडी से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो भी इस जगह पर रिलीज होता है, और जितना एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है
वो भी यहाँ पर रिलीज होता है, लेकिन वो बॉडी के बाहर रिलीज नहीं होता है, वो जैकेट के अंदर रिलीज होता है, बॉडी के बाहर रिलीज नहीं हो रहा है। तो बॉडी क्या करता है, उसको वहां पर स्टोर करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको भी इस जैकेट के अंदर स्टोर करता है, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उसको भी इस जैकेट के अंदर स्टोर करता है। और जब उसको मोर और लेस कंडीशन ठीक लगता है कि नहीं ठीक है, अभी मेरे पास थोड़ा रिलेटिवली पानी का अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो वो क्या करता है, ये जो फीसेस होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और ये जो एक्सक्रीशन का जो वेस्ट मटेरियल है, ये जो यूरिया है, दोनों को मिला के एक ऐसा ग्रे कलर का एक पेस्ट जैसा बनाता है, व्हाइटिश ग्रेइश ऐसा एक पेस्ट बनाता है, और वो अनडाइजेस्टेड फूड एंड यूरिक एसिड को कंबाइन करके बॉडी के बाहर रिलीज करता है। तुम लोगों ने I know I shouldn't say this, लेकिन just because I am trying to explain this to you, तुम लोगों ने ये जरूर देखा होगा। जब बर्ड्स एक्सक्रीट आउट करते हैं बहुत जगह पर, पेड़ के नीचे नीचे तुम लोगों ने देखा होगा कि वो they release a paste like thing which is somehow grayish whitish in color। तुम लोगों ने ये जरूर देखा। यस सर। Yes। वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी है और वही यूरिक एसिड भी है, वो दोनों को एक साथ एक पेस्ट बना के बॉडी के बाहर रिलीज करता है। क्यों एक साथ क्यों रिलीज करेगा? Mantesh or Santoshi, I cannot read this. Please mute your mic. Can you kindly mute your mic? Yeah, thank you. So actually मैं ही अपना मैं अपना ही साउंड फिर से वापस सुन पा रहा था, इको हो रहा था, इसीलिए आई आस्क यू टू जस्ट म्यूट योर माइक। तो क्या होता है, वो अलग अलग एक्सक्रीशन अलग अलग इजेशन नहीं करेगा क्योंकि उनमें पानी का अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अनडाइजेस्टेड फूड और यूरिक एसिड को बहुत अच्छी तरीके से मिला के एक सॉलिड पेस्ट बनाता है और फिर उसको बॉडी से बाहर रिलीज करता है। समझ में आ गया? सो लेट्स क्विकली रिवाइज। Yes, sir. ओके, सो लेट्स वेरी वेरी क्विकली रिवाइज। बॉडी क्या क्या पढ़ाया मैंने? बॉडी के से क्या रिलीज करना है? बॉडी से मुझे नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करना है। कहां से आता है? प्रोटीन से आता है और न्यूक्लिक एसिड से आता है। अब किस फॉर्मेट में बनता है ये? अमोनिया के फॉर्मेट में बनता है। अब अमोनिया को अगर मुझे बॉडी से बाहर रिलीज करना है तो फिर मुझे अमोनिया को पानी के अंदर घोल के रिलीज करना पड़ेगा। तो फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स रिलीज कर पाएंगे? जो एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, Fishes. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो पानी में रहते हैं। उनका एडवांटेज क्या है? इमीडिएटली बॉडी में ये अमोनिया बना और इमीडिएटली वो डिफ्यूज कर गया बॉडी से बाहर, तो उनमें ये फैसिलिटी है। लेकिन और उनमें और एक फैसिलिटी क्या है कि जब अमोनिया बॉडी से बाहर रिलीज होता है तो ये अमोनिया रिलीज होता है इनटू द वाटर, और वाटर में जब अमोनिया चला जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया कि अमोनिया बहुत ज्यादा वाटर में सॉल्युबल रहता है। इट इज वेरी वेरी सॉल्युबल इन वाटर। सिंस अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, इमीडिएटली व्हेन अमोनिया इज रिलीज्ड इन वाटर, वो पानी के अंदर डाइल्यूट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट इवन टॉक्सिक टू द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट या फिर आसपास के ऑर्गेनिज्म के लिए भी टॉक्सिक नहीं है। और अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म वो पानी में नहीं रहता है, उसको पानी का अवेलेबिलिटी कम है, तो फिर उसको अमोनिया को किसी और फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितना पानी अवेलेबल है। अगर मोर और लेस ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पानी अवेलेबल है तो फिर यूरिया में कन्वर्ट करो, और अगर बिल्कुल कम पानी अवेलेबल है तो फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट करो। तो ये तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स बन गए मेरे पास। अमोनिया जो रिलीज करता है एमोनोटेलिक, यूरिया जो रिलीज करता है यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड जो रिलीज करता है यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब यूरियोटेलिक में क्या है, उनके पास अमोनिया रिलीज करने लायक उतना पानी तो नहीं है लेकिन कम पानी है, और यहाँ पर क्या होता है, दे कैन ऑल्सो ऑस्मो रेगुलेट। अगर पानी ज्यादा है तो फिर उसी यूरिया को ज्यादा पानी के अंदर डिसॉल्व करके बॉडी से बाहर रिलीज करो, सो द ऑर्गेनिजम्स रिलीज डाइल्यूट यूरिन। एंड अगर पानी कम पीता है वो ऑर्गेनिज्म या फिर पानी अवेलेबल कम है, देन व्हाट हैपेंस, उतने ही अमाउंट ऑफ यूरिया को तुम्हें बॉडी से रिलीज आउट करना पड़ेगा, लेकिन उसी कम पानी में डिसॉल्व करके रिलीज करो। एंड बिकॉज तुम कम पानी में तब डिसॉल्व करके यूरिया को रिलीज कर रहे हो, देन व्हाट हैपेंस इज द यूरिन बिकम्स वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कम पानी है तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ज्यादा पानी है तो डाइल्यूट यूरिन, लेकिन यूरिया उतना ही रिलीज करना पड़ेगा। यूरिया का अमाउंट सेम है,
पानी का अमाउंट, तुम कितना पानी पीते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के अंदर डिसॉल्व करके बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। और अगर बिल्कुल ही कम पानी है, बिल्कुल ही कम पानी अवेलेबल है, तो फिर क्या करोगे? उसको और भी क्यों, तो फिर यू डोंट वांट टू इजेस्ट आउट इमीडिएटली, उसको तुम्हें काफी दिनों तक बॉडी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, तो फिर उसको ऐसे चीज में कन्वर्ट करो which is very 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 less toxic. So if you want to convert it into something that is very 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 less toxic, then you convert it into, then the organisms they convert it into uric acid. Uric acid एक, you know, it is less soluble in water, वो पानी में ज्यादा soluble नहीं होता है, and it is a powder like substance. तो और ये organisms जैसे birds and lizards, they don't want to lose water. फिर वो क्या करते हैं, उनका जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, इजेशन का जो फूड मटेरियल है, उसके साथ वो क्या करते हैं, उसके साथ वो कंबाइन कर देते हैं एक्सक्रीटरी, जो यूरिक एसिड है उसको कंबाइन करते हैं, करके एक पेस्ट बनाते हैं, करके क्या बनाते हैं, एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को वो बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका पानी का लॉस काफी कम हो जाता है। तो हमारे पास ये 3 कैटेगरी, मेजर कैटेगरी, इसके बाद भी और कैटेगरीज हैं, लेकिन तुम लोगों को अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू मतलब I hope you have understood this. Subcategories, maybe in some later class I will explain. But majorly 3 categories: ammoniotelic, ureotelic, uricotelic. Have you all understood this? Yes, sir. Okay. Okay. Now, because it is human physiology, खैर अभी ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डेफिनेटली थोड़ा सा ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेटली मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन हम थोड़ा सा किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किडनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखो, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो प्रोटीन या फिर जहां से भी फूड मटेरियल से जो नाइट्रोजन आता है, उसको बॉडी अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और ये जो अमोनिया है, दिस अमोनिया गेट्स converted into urea, and this urea, who converts this? Liver. And this urea is being excreted out, it is being mixed with water, पानी के साथ ये मिक्स करता है। कितना पानी वो क्वेश्चनेबल है, जितना पानी पियोगे उतना पानी। और ये काम कौन करता है? किडनी क्या करता है, इस यूरिया को पानी के साथ डिसॉल्व करके बॉडी से बाहर रिलीज करता है। ये हमारा मैकेनिज्म है। तो लेट्स हैव अ लुक कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, इट इज मेड अप ऑफ 2 kidneys. It is made up of 2 kidneys. I will draw the structure. It is made up of 2 ureters and 1 urinary bladder and 1 urethra. ठीक है, हमारे पास 2 किडनी होते हैं, 2 यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। और देखो, हमारा जो स्पाइन है ना, हमारा जो स्पाइन है उसके 2 साइड्स में, हमारा जो स्पाइन है उसके 2 साइड्स में हमारे 2 किडनी रहते हैं। ठीक है, हमारा जो स्पाइन है उसके 2 साइड में 2 किडनी रहते हैं। अब देखो, स्पाइन मींस स्पाइनल कॉर्ड। ओके सर। ओके, और क्या है, लेट मी ड्रॉ दिस नाउ। मैंने क्या बोला, हमारे पास कितने किडनीज हैं? 2 किडनी। लेट मी जस्ट रब दिस। और एक चीज याद रखने लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज माई राइट किडनी। देखो, हम जनरली राइट को इस साइड में ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट को इस साइड में ड्रॉ करते हैं, लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी जब हम ड्रॉ करेंगे या फिजियोलॉजी, वो उल्टा होगा। दिस इज कन्वेंशन। सो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज माई राइट किडनी, एंड यहाँ पर जो राइट साइड में ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज माई लेफ्ट किडनी। ओके, हमारे पास 2 किडनी है। तो 2 किडनी का अगर हम पोजीशन देखते हैं, तो जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, और जो लेफ्ट किडनी है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। दोनों ही, अगर हम पीछे के तरफ से देखें, दोनों ही हमारे स्पाइन के सामने की तरफ रहता है, स्पाइन के 2 साइड्स में रहता है, थोरैक्स के, थोरैसिक कैविटी के। अब यहाँ पर क्या होता है, सर जो एक सेकेंड, जो, हाँ बोलो।
सर आपने पोजीशन के कुछ बोला, वो और भी बोल सकते हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। देखो हमारे पास दो किडनीज हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, दे आर प्रेजेंट ऑन टू साइड्स ऑफ द स्पाइन, दैट इज ओके। बट देन ये जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर की तरफ है। एनी आइडिया, कोई बता पाओगे क्यों ये होता है? एनी आइडिया? क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास और एक ऑर्गन है, व्हाट इज दैट टुवर्ड्स द राइट? Mark. एसोसिएटेड विद स्टमक। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया क्लास में। सर लीवर। लिवर। तो ये जो लिवर है वो उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करता है, और लिवर और किडनी में कनेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि लिवर में बनता है यूरिया, और वो यूरिया किडनी में जाके डिसॉल्व होके फिर निकलता है पानी के साथ, है कि नहीं? सो कनेक्शन तो थोड़ा सा रहना चाहिए। सो दैट इज व्हाई सिंस दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, इसीलिए लिवर जो होता है वो राइट किडनी को थोड़ा नीचे की तरफ पुश कर देता है। दैट इज व्हाई राइट किडनी इज रिलेटिवली थोड़ा नीचे की तरफ रहता है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है। अब किडनी से जो निकलता है दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द यूरेटर। जितना भी यूरिन फॉर्म होगा वो फिर यूरेटर में आ जाएगा। व्हाट इज दिस नोन एज? इट इज नोन एज द यूरेटर। ओके, अब देखो दिस इज नोन एज द यूरेटर, और यहां पर क्या है? इट कम्स इनटू अ रीजन व्हिच इज नोन एज द ब्लैडर। Urinary bladder. Absolutely, the urinary bladder. This is known as the urinary bladder. एक चीज देखो तो ये जो मेरा मैं सिर्फ ब्लैडर की बात करता हूँ, एक ब्लैडर में टोटल कितने ओपनिंग्स हैं? 3 ओपनिंग्स हैं। ये दो ओपनिंग्स, यस गुड, दिस एंड दिस, देयर आर 3 ओपनिंग्स इन द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो ऊपर वाले जो हैं, ये देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, कभी ऐसा सुना है कि देखो अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सिंस दिस इज साइंस, यहाँ पर कोई ऐसे बिकॉज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, यू मे कम अक्रॉस सर्टेन टर्म्स जो तुम्हें थोड़ा सा अभी फनी लगे या फिर थोड़ा सा टैबू लगे, लेकिन यू नीड टू क्रॉस दिस बेरियर। हाँ, बिकॉज इफ आई नीड टू टीच यू देन आई नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। यहाँ पर क्या है, कभी सो आई व्हाट वाज आई आस्किंग इज, सपोज यू फील टू यूरिनेट, तुम्हें यूरिन करने का इस फीलिंग को कहते हैं, जब हम बॉडी से यूरिन को रिलीज करते हैं इसको कहते हैं मिक्ट्यूरेशन। तो जब हमें मिक्ट्यूरेशन का जब फ्लो आता है, कभी ऐसा देखा है तुमने कि आई गेट अ अर्ज टू यूरिनेट, एंड देन थोड़ी देर बाद वो जो यूरिन हमारे ब्लैडर में आया है वो वापस चला जाता है किडनी के अंदर? अभी मतलब डज दैट एवर हैपन? किडनी से यहाँ पर आया है इसीलिए आई एम फीलिंग दैट आई वांट टू यूरिनेट, एंड देन थोड़ी देर बाद बिकॉज हम यूरिनेट नहीं करते ये वापस जाके ऊपर चला जाता है किडनी के अंदर। ऐसा कभी सुना है या नो? नो सर। ऐसा तो ऐसा No, नहीं होता। sir. और इनफैक्ट अगर जब तुम्हें यूरिनेट करने का फीलिंग आता है, अगर तुम तब यूरिनेट नहीं करोगे देन तुम्हारा वो प्रेशर बढ़ता ही रहता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द फ्लो ऑफ यूरिन इज यूनिडायरेक्शनल, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। जब एक बार अगर वो किडनी से निकल गया तो फिर उसको ब्लैडर में आना ही पड़ेगा, और ब्लैडर से उसको बॉडी के बाहर जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव। सो लेकिन हमारे बॉडी में सर आपने एक टर्म बोला ना यूरिन को लेके कुछ। shall I write this? The process of releasing urine out of the body is known as micturition. I have written this in the board. Okay? तो फिर इसीलिए अब देखो मैं फिर से अब ड्रॉ कर रहा हूं। मैं ये 3 ओपनिंग्स के बारे में तुमसे पूछ रहा था। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी ड्रॉ करोगे ये डायग्राम तब एक चीज याद रखने लायक है, ये है मेरा यूरिनरी ब्लैडर। देखो ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और यहाँ पर 2 ऐसे यूरेटर्स आए हैं।
ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये जो यूरेटर आता है ये एक एंगल बनाता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट इट फॉर्म्स एन एंगल लाइक दिस, ऐसा करके ऐसा. इट्स ऑलवेज, मैं जियोमेट्रिकली अभी थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं रहता है लेकिन फिर भी इट फॉर्म्स एन एंगल. व्हाई डज इट फॉर्म एन एंगल? सो दैट जो यूरिन एक बार इस तरफ आ जाता है, इट डज नॉट बैक फ्लो. अगर वो एंगुलर नहीं रहता, अगर वो स्ट्रेट रहता, इफ इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट चैनल, इफ इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट चैनल, तो इस तरफ आया तो उस तरफ वो वापस भी चला जाए. It could have gone back, but I don't want it to go back. I want to release it out of the body. If I want to release it out of the body, it always needs to form an angle. तो जब भी ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये डायग्राम मैंने अभी जैसे ड्रॉ किया ऐसा नहीं है, बट ऑन पर्पस मैंने ऐसे ड्रॉ किया था क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे ही ड्रॉ करते हैं. तो हमेशा इसको याद रखोगे, whenever I am drawing this, I should draw this at an angle. इसको थोड़ा सा ऐसा, एटलीस्ट थोड़ा सा ऐसा एंगल बना के हम दिखाएंगे. Why? It is always present in an angle so that the backflow of urine can be prevented. And you can see that there are 3 openings over here. 2 opening को कहते हैं ureter, urinary bladder opening, and एक opening है ये वाला opening, this opening. Because यहाँ पर 3 opening है, इसको हम कहते हैं, it's known as trigemini. It is often known as trigemini. यहाँ पर एक एंगल ऐसा ऐसा एक ट्राइंगल जैसा बनता है, यहाँ पर 2 एंगल्स बनते हैं और यहाँ पर और एक ओपनिंग है. सो इट फॉर्म्स अ एक क्या कहते हैं, एक ट्राइंगल जैसा बनाता है, विच इज नोन एज द ट्राइजेमिनी. एक चीज याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर एक मस्क्यूलर रीजन है, यूरेथ्रा. यहाँ पर एक मस्क्यूलर रीजन है, दिस इज द यूरेथ्रा. This urethra, it is larger in males, it is shorter in females. The urethra is relatively larger in males, it is shorter in females. Have you understood the, क्या components have, do we all agree with the components, and have we all understood the components of the human excretory system? Is that clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If this is clear, I'll move on. I'll take around 15 more minutes. Okay. So मैंने देखो, let's go into the structure of kidneys into a bit more details. Let's have a look at the structure of kidney. और मैंने already बता दिया है कि हमारे पास 2 kidneys हैं, the left kidney and the right kidney. The right kidney is relatively थोड़ा नीचे रहता है because it is being pushed by what? It's being pushed by the liver. It is slightly pushed. Yes, it is slightly pushed by the liver. अब देखो, अब kidney, it is एक ऐसा मतलब इस, I don't know whether I can show this color to you. It's somehow this color. ऐसा एक color का एक structure रहता है. देखो, अब देखो, ये जो हमारा किडनी है, एक किडनी से जो निकलता है, that is okay, just a second please, let me draw this properly. Every kidney is like this, bean shaped. और किडनी से क्या निकलता है, किडनी से जो स्ट्रक्चर निकलता है, एक ऐसा फनल टाइप स्ट्रक्चर निकलता है. किडनी से एक ऐसा funnel जैसा, we know a funnel like this, so you have a funnel like structure over here. You have a funnel like structure. इस funnel like structure को हम कहते हैं हाइलम. क्या कहते हैं? हाइलम. Okay, from every kidney you have a structure which is known as a hilum. Okay, अब देखो, ये जो हाइलम है, this is being embedded inside over here. और यहाँ पर क्या रहता है, देखो, ये जो मैंने देखो, एक अंदर का एक ऐसा लेयर रहता है, एक अंदर का एक ऐसा लेयर रहता है जो हाइलम के साथ ऐसा कनेक्टेड है. आई एम ड्राइंग दिस इन व्हाइट कलर. ऐसा रहता है. This is made up of white fibrous tissues. It is made up of white fibrous tissue. ठीक है. और ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आर्टरीज आते हैं. This region
there is arteries which bring blood from the heart into this region, and then you have veins which take away blood इस रीजन में. देखो मैंने एक एक ड्रॉ किया है, मैं बहुत ड्रॉ कर, आई कैन ड्रॉ इट, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, सो आई विल नॉट ड्रॉ इट. ठीक है, तो फिर मैंने क्या कहा, ये मेरा जो यहाँ पर देखो एक मरून कलर का मैंने ये ड्रॉ किया है, दैट इज द किडनी. बाहर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और मैंने क्या ड्रॉ किया है, यहाँ से ग्रे कलर का मैंने यहाँ पर हाइलम ड्रॉ किया है. द ग्रे कलर फनल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज हाइलम. एंड दिस हाइलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाइलम के अंदर क्या रहता है, यू हैव अ आर्टरी विच ब्रिंग्स इन ब्लड एंड यू हैव अ वेन विच टेक्स द ब्लड अवे, fine, and this is all embedded into a white fibrous tissue. ये जो पूरा जो region है, that is very very rich in white fibrous tissue. मैं अब पूरे को draw, okay, let me just draw this. So this region, it is made up of white fibrous tissue. अब देखो इसके बाहर, बिल्कुल इसके बाहर क्या रहता है, ये जो white fibrous tissue है, ये किस चीज से बना हुआ है, ये बना हुआ है कोलेजन फाइबर से. इसका बाहर का जो रीजन है, इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स. कोलेजन, यस सर, which region? ये जो मैं जो व्हाइट कलर लिख रहा हूँ, उसको व्हाइट कलर में ही मैं लिख रहा हूँ. यू नो व्हाट आई हैव ड्रॉन इन व्हाइट कलर, आई एम राइटिंग इट इन व्हाइट कलर. अंडरस्टूड? Okay, sir. ओके. इट कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स, राइट. उसका जो बाहर वाला रीजन है वो. अब देखो बिल्कुल ये जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का जो लेयर है, उसके बाहर और एक लेयर रहता है, इट इज नोन एज अ रीनल फैट. इस बिल्कुल इसके बाहर और एक रीजन रहता है. Sir, pardon, please. Okay. Let me draw this once again. I think that will be more clear to you. मैं शुरू से ड्रॉ करता हूँ. तो पहले देखो, अच्छा हम हाइलम से स्टार्ट करते हैं. हम किडनी फॉर्मेशन दिखाएंगे. तो एक रीजन रहता है किडनी में जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ रहता है. ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज. अब यहां से एक फनल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है. देखो इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज इट नोन एज? Lum. Hilum. हाइलम. इट इज नोन एज हाइलम. ओके. और यहाँ पर why is the hilum so very important? Because यहाँ पर it receives arteries, it receives blood with the help of arteries, and it loses deoxygenated, I mean वहां से you know arteries bring in blood and veins take away the blood from you. Okay, so you have this structure, and this everything is embedded inside this. कहाँ पर embedded है? ये white fibrous tissue के अंदर इस तरीके से embedded रहता है. ठीक है, I hope this is clear. Any doubt till here? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. अब यहाँ पर ये जो फाइब्रस सॉरी ये दिस इज व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का एक लेयर है. इसके बाहर एक लेयर रहता है. लेट मी यूज अनदर कलर. ये कलर. ठीक है, इसके बाहर कैन यू सी आई एम ड्राइंग एक लाइट, एक रोज पिंक कलर का. बिल्कुल इसके बाहर एक लेयर है which is known as the renal fat layer. It is known as the renal fat layer. फैट से बना हुआ रहता है ये लेयर, और ये एक फैट लेयर रहता है किडनी के अंदर. Why is it so very important? Because it acts as a shock absorber. It acts as a shock absorber. तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. स्टार्टिंग में एक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है सी शेप का, उसके अंदर है हाइलम. हाइलम के अंदर आर्टरीज, वेन्स है. पूरा जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का लेयर है, उसके बाहर जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ फैट. इट इज नोन एज रीनल फैट लेयर. बहुत बुक्स में देखोगे इट्स रिटन रीनल फैटी कैप्सूल. बहुत जन इसको रीनल फैटी कैप्सूल भी बोलते हैं. दिस इज ऑफन नोन एज द रीनल फैटी कैप्सूल. और इसके बाहर बिल्कुल बाहर की तरफ एक और एक लेयर है. कैन यू सी दिस ब्राउन कलर आई एम ड्राइंग? This is a very hard layer. It's a very hard layer. It's a protective layer. And ये जो मैंने ब्राउन कलर का जो मैंने लेयर ड्रॉ किया है, that is known as the
fibrous capsule. And that makes it very, very, very tough. और इसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं the renal fascia. It is also known as renal fascia. So there are total कितने structures हुए? Total यहाँ पर 3 coverings बने. So अगर मैं बाहर की तरफ से देखूं, तुम लोग बोलो स्ट्रक्चर को देख के, अगर किडनी को हम बाहर की तरफ से देखें तो बिल्कुल बाहर क्या है? Renal fascia. Renal fascia. It's a tough layer. It gives a lot of protection. It gives turgidity. It gives rigidity to the kidneys. उसके अंदर जो लेयर है, मैंने यहाँ पर पिंक कलर में ड्रॉ किया है, वो है renal fat. renal fat layer. What is the importance of the renal fat layer? To absorb It is shock absorber. को absorb करता है, एक cushion like structure देता है हमारे पूरे किडनी को. उसके अंदर और एक fibrous tissue layer है, उसको हम क्या कहते हैं? White fibrous tissue. White fibrous tissue. It is white fibrous tissue layer. So is this clear? So how many layers in the kidney? 3 layers. बाहर की तरफ से anatomically 3 layers. और इसके अंदर एक funnel shaped structure inserted है, उसको हम क्या कहते हैं? Hilum. Hilum. Hilum is provided with 2 types of things. What are they? Arteries and veins. Arteries and veins. So I hope this is completely clear to you. अब देखो ये तो हो गया बाहर की तरफ से, ये तो हो गया बाहर की तरफ से. एक चीज ओके, अब अंदर का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा देख लेते हैं. ये जो मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का गैप है, वहां पर क्या रहता है? वहां पर चलो देखते हैं व्हाट इज प्लेजेंट, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. So if this is your kidney, have a look please. और यहाँ पर वो हाइलम एंड एवरीथिंग, और यहाँ से वो यूरेटर चला जाता है. फाइन. अब देखो बिल्कुल बाहर का जो पोर्शन है, बिल्कुल बाहर का जो ये जो पोर्शन है, मतलब ऑल द 3 layers एंड एवरीथिंग सब मिला के, this is known as the renal cortex. देखो मैं 2 टाइप का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं. पहले मैंने जो दिखाया वो बाहर के तरफ से कैसा लगता है. अब अगर मैं एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं तो अंदर की तरफ से किडनी कैसा दिखता है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, इसको हम कहते हैं द रीनल कॉर्टेक्स. अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनता है. ये जो रीनल कॉर्टेक्स है, इसके अंदर ऐसे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं. किडनी का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो फिर ऐसे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं. renal pyramid. Yes, these are known as the renal pyramids. Good. And renal pyramid का थोड़ा सा पोर्शन रहता है कॉर्टेक्स के अंदर, और मैक्सिमम पोर्शन जो रहता है वो अंदर की तरफ रहता है. दैट इज नोन एज द रीनल मेड्यूला. ये जो मैंने यहाँ पर साइन कलर से मार्क किया है, डॉट 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 दिखाया है, दैट इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स. ये वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज द रीनल मेड्यूला, और यहाँ पर इट इज द रीनल पैपिला. ओके, सो आई अंदर के तरफ से आई कैन डिवाइड द किडनी इनटू 3 पार्ट्स: रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पैपिला. और यहाँ पर क्या होता है, एक चीज समझने लायक है कि देखो रीनल कॉर्टेक्स जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, रीनल कॉर्टेक्स कहाँ पर रहता है? बाहर की तरफ रहता है. समझो यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. रीनल कॉर्टेक्स बाहर रहता है और अंदर वाला जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? Renal medulla. मेड्यूला. अब देखो बहुत टाइम में क्या होता है, स्मॉल पोर्शंस, सी आई हैव ड्रॉन द कॉर्टेक्स विद साइन कलर. स्मॉल पोर्शंस ऑफ द व्हाट कैन आई से, स्मॉल पोर्शंस ऑफ द कॉर्टेक्स वो ऐसा मेड्यूला के अंदर ऐसा चला आता है. कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव ड्रॉन? मैं फिर से ड्रॉ करता हूं तब समझ में आएगा. देखो
ये जो cyan color का region है, that is what? That is my cortex. ये मेरा cortex है. Many a times what happens is some portion of the cortex, it comes inside. ऐसे दो pyramids के अंदर, ये एक pyramid है, ये दूसरा pyramid है, दोनों pyramid के बीच में जो space है, वहां पर ऐसा घुस जाता है. Some portion of the cortex, it gets inserted into the medullary region. Did you get the concept? Concept समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, फिर मैं हाँ जी बोलूंगा. सर. Okay? Yes, sir. रीजन है, ये जो रीजन है ऑफ द कॉर्टेक्स, जो कभी कभी मेड्यूला के अंदर चला आता है, तो एक इंटरमिंगल करने वाला एक रीजन है. जनरली ये कॉर्टेक्स रीजन नहीं है, लेकिन कॉर्टेक्स जिस चीज से बना है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन कभी कभी मेड्यूला के अंदर चला आता है, और उसको हम कहते हैं द कॉलम्स ऑफ बर्टीनी. इसको हम कहते हैं, ये जो रीजन है, दिस रीजन, दिस इज नोन एज द कॉलम ऑफ बर्टीनी. अब यहाँ पर क्या है, ये जो तुम्हारा जो पिरामिड मैंने ड्रॉ किया है, लेट मी यूज अ वेरी ब्राइट कलर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन. इसके जैसे जैसे हम लोगों को पता है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. सिमिलरली अगर मुझे यूरिन बनाना है, देन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ नेफ्रॉन. यूरिन बनता है नेफ्रॉन के अंदर. कैसे बनता है वो आज के स्कोप के बाहर है. आई कैन नॉट टीच इट. इफ आई स्टार्ट इट, आई कैन नॉट कंटिन्यू विद इट. लेकिन मैं जरूर इतना बताना चाहता हूं कि इसके अंदर मैं एक ड्रॉ, आई विल जस्ट ड्रॉ वन. ऐसा मैं एक ड्रॉ करूंगा, लेकिन एक ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे रहते हैं. आई एम जस्ट ड्रॉइंग वन. ऐसे करके नेफ्रॉन्स रहते हैं पिरामिड्स के अंदर, राइट? पिरामिड्स के अंदर ऐसे नेफ्रॉन्स रहते हैं. जो ब्लड है, ब्लड आता है ऐसे, लेट मी, जितना भी ब्लड है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, और फिल्टर्ड होके यहाँ से निकलता है. फिल्टर्ड होके इस तरीके से, देखो आई एम ड्राइंग, लेट मी ड्रॉ द फिल्ट्रेट लाइक दिस. ऐसे ग्रीन कलर में फिल्टर्ड होके जो वेस्ट मटेरियल है वो इस तरीके से निकलता है. समझ में आ रहा है? आइडिया आ रहा है कि नहीं बताओ? सर Yes, वो sir. आपने जो किया है वो वाला क्या है? अच्छा चलो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, एक बार रिविजन भी हो जाएगा. ये है मेरा थिंग. बाहर का जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं, लेट मी, बहुत ग्रॉसली ड्रॉ कर रहा हूँ, ज्यादा ये नहीं करते यहाँ पर. बाहर वाला पोर्शन है द कॉर्टेक्स, Renal cortex. रीनल कॉर्टेक्स, और उसके अंदर है जो ब्लैक वाला रीजन है, ग्रे इज द कॉर्टेक्स, ब्लैक वाला रीजन इज द मॉड्यूल. Nodula Medulla. and fibula. ओके. और इसके अंदर है ऐसा पिरामिड्स. ऐसे पिरामिड्स, ठीक है? तुम किडनी को काटोगे तो ऐसा देख पाओगे, ये दिखता है आपको से कि ऐसा 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 स्ट्रक्चर दिखता है. अब यहाँ पर क्या होता है कि मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर, लेट मी यूज अनदर कलर, ब्राइट कलर. और अब मैंने ये भी बताया कि कभी कभी क्या होता है, ये दो पिरामिड्स के अंदर इस तरीके से कॉर्टेक्स का थोड़ा सा पोर्शन ऐसे अंदर की तरफ चला आता है. इसको हम क्या कहते हैं? The region of the cortex that invaginates into the renal pyramids, उसको हम क्या कहते हैं? Columns of Bersent. Column of Bertini. Column of Bertini. Okay, good that you at least remember कि उसको column कहते हैं. Fine, no problem. Okay, तो इसको हम जो region अंदर की तरफ चला जाता है, that is known as the column of Bertini. अब देखो, ये जो है इसके अंदर रहता है हमारा actual structure. ये जो पिरामिड है उसके अंदर एक्चुअल एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है. मैंने यहाँ पर एक एक आई एम ड्राइंग, एक नहीं रहता, ऐसे मिलियंस रहते हैं. देयर आर मिलियंस, बट आई एम जस्ट ड्राइंग वन, जस्ट टू एक्सप्लेन. ये जो ऐसा ऐसा एक छलनी की, मतलब बंगाली में कहते हैं छाकनी. छाकनी देखे छो ना तुमरा? छाकनी देखा है हाँ ना? सर. हाँ सर.
वे एकदम छापनीर मतन स्ट्रक्चर, छलनी की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? देखो वैसा ही ड्रॉ किया है। अब क्या होता है, ब्लड इसके अंदर आता है, हाई प्रेशर में ब्लड आता है, बिल्कुल हाई प्रेशर में ब्लड आता है, और ये जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। वो हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। या फिर मेरा एक वीडियो भी है राजीव क्लास के, इसमें मेरा एक वीडियो है एक्सक्रीशन के ऊपर, वो कैसे फिल्टर होता है वो मैकेनिज्म मैंने समझाया है, यू कैन गो थ्रू दैट, ओके? बट एनीवे दैट्स नॉट व्हाट आई एम डिस्कसिंग टुडे। तो इसके अंदर ऐसा ब्लड आता है और ब्लड फिर फिल्टर्ड होके जो filtered, जो undesired material है, sir, why kidney are present in left and so that it can be held at the position. Let me read the question once again. Someone is asking me a question, sir, why kidney is present in left and right of the spine and not in the front? It is अच्छा, left and right मतलब क्या है, front में ही रहता है, it is relatively front में ही रहता है, okay? फ्रंट में ही रहता है बिकॉज वहीं पर स्पेस है। बैक मतलब स्पाइन के पीछे नहीं, फ्रंट में ही रहता है, बिटवीन द स्पाइन एंड यू नो इट्स अ 3D स्ट्रक्चर। ये तो पेपर 2D स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ा सा सामने की तरफ ही रहता है, बट स्पाइन के दो साइड्स में रहता है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। एनीवे, तो यहाँ पर देखो रेड कलर में मैंने दिखाया कि ब्लड आ रहा है, वो फिर ऐसे फिल्टर्ड होता है और जो अनडिजायर्ड मटेरियल है वो इस तरीके से यहाँ से निकल जाता है। जो यूरिया एंड टॉक्सिक जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है वो यहाँ पर निकल जाता है। अब इसको एक्सेप्ट कौन करता है? इसको एक्सेप्ट करता है छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर जो फिल्टर्ड होके जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सेप्ट कौन करता है? इसको हम कहते हैं माइनर कैलिसेस। क्या कहते हैं? माइनर कैलिसेस, ओके? कैलिक्स लिखा है, सिंगुलर इज कैलिसेस, ओके? और ये जो जितने भी माइनर कैलिसेस हैं ये कंबाइन करके ऐसा एक बड़ा सा कैनल जैसा बनाता है, which is known as the major calyx, which is known as the major calyx। and ये जो major calyx है then it gets into the ureter, और यहाँ से हमारा एक ड्रॉप, large drop of urine निकलता है, और जैसे मैंने दिखाया है कि then it comes into the urinary bladder। Have you all understood the thing? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज। तुम लोग बताओगे, मैं तुम लोगों को सिर्फ पूछूंगा, एक बाहर की तरफ से अगर मैं देखूं, बिल्कुल बाहर की तरफ से, देन यू पीपल टेल मी कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट, ओके? बिल्कुल बाहर की तरफ से। लेट मी गो टू अनदर पेज फर्स्ट। तो बिल्कुल बाहर क्या स्ट्रक्चर है किडनी के बाहर, बताओ? Renal fascia. ओके, रीनल फैसिया। 3 कवरिंग्स हैं, फर्स्ट इज रीनल फैसिया, उसके बाद Renal tract. फैट, उसके बाद White fibrous tissue. White fibrous tissue. यस, फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं उसको। ये सब मिलके और उसका थोड़ा सा नीचे वाला रीजन एक साथ मिलके क्या बनता है? अब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, क्या कहते हैं इसको? Hilum. नहीं, हाइलम बाद में। ये यहाँ पर 3 लेयर्स हैं और उसके बाद ये वाला रीजन क्या है? Renal cortex. मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ, ये मैंने अलग से समझाया था और बाद में मैंने और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर समझाया। तो ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा रीजन है? Renal medulla. Medulla. थोड़ा portion of the cortex can come inside the medulla. What is that known as? Columns Renal of botany. Columns of Botany. ठीक है। अच्छा, अब मेड्यूलरी रीजन से अब क्या होता है? कॉर्टेक्स के वहां पर ब्लड आता है और मेड्यूला के अंदर वो फिल्टर होता है, सब होता है, और फिर वो मेड्यूला से जब निकलता है वो कौन सा, मतलब किसके अंदर निकलता है? स्पेशल स्ट्रक्चर। Papula. Papula. नहीं, या आप वो पिरामिड्स बोल रहे हैं? हाँ, पिरामिड्स के अंदर मैंने कहा ना कि ये सब कंबाइन होते हैं, माइनर कैलिक्स। Minor calyx. Minor calyx. और बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनता है? मेजर कैलिक्स। Major calyx. और मेजर कैलिक्स फिर इट लीड्स टू रीनल पेल्विस, या जिसको हम यूरेटर कहते हैं, और फिर दिस कम्स इनटू द ब्लैडर। तो
और मैंने सबको मिला के एक साथ लिख दिया है। ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द स्ट्रक्चरल पोर्शन। कॉर्टेक्स मेड्यूला, ये वाला जो रीजन है, दिस इज द फिल्टर, दिस इज द स्ट्रक्चर। कॉर्टेक्स मेड्यूला, इसके अंदर कॉर्टेक्स मेड्यूला और ये जो माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स है, दिस इज द पैपिला। तुम जो बोल रही थी पैपिला, वो ये सब मिला के पैपिला बनता है, ठीक है। पैपिला इज ऑल्सो द फिल्ट्रेट, फिल्टर में भी आता है, थोड़ा सा फिल्टर में भी आता है, थोड़ा सा ये भी आता है। तो देखो, स्ट्रक्चरली रीनल फैसिया फैट फाइब्रस कैप्सूल। फिल्टर क्या क्या है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला को मिलके पिरामिड्स बनते हैं, पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन्स रहते हैं और नेफ्रॉन्स ही एक्चुअल फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट है उसको पैपिला के अंदर जो माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स है उसमें भेज लेता है। फिर वो स्ट्रक्चरली यूरेटर में आता है, फिर ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथ्रा में आता है, और फिर वहां से मिक्टिवेशन होके बॉडी से बाहर निकल जाता है। Have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने देखो, जब तुम बुक में पढ़ोगे ये सब एक साथ नहीं कभी लिखा नहीं रहेगा। Just I wanted to write the structural part, the filtrate part, and the excretory part together so that it makes sense. कि अगर मैं किडनी को बाहर की तरफ से देखूं तो कैसे कैसे रीनल फैसिया, फैट, फाइब्रस टिश्यू सब मिला के मोर और लेस कॉर्टेक्स बनता है। कॉर्टेक्स के नीचे है मेड्यूला, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के अंदर रहता है तुम्हारा आई हैव दिस the नेफ्रॉन्स में एक्चुअली क्या होता है, नेफ्रॉन्स में एक्चुअली फिल्ट्रेशन होता है, वो छकनी की एक छाकनी की तरह होता है, छलनी की तरह होता है, वहां पर फिल्ट्रेशन हो गया ब्लड का, जो फिल्ट्रेट हुआ वो फिर पैपिलरी रीजन में आएगा। पैपिलरी रीजन में क्या है, माइनर कैलिक्स, बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलके क्या करते हैं, मेजर कैलिक्स फॉर्म करते हैं, बहुत सारे मेजर कैलिक्स मिलके यूरेटर में ओपन करते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो मेजर कैलिक्स एंड यूरेटर है, दिस इज एक्चुअली द हाइलम वाला पोर्शन, ठीक है। और फिर यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा होके बॉडी से बाहर। सर, आप बोले कि पेप्यूलिन में वो इंक्लूड होता है, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स। हाँ हाँ। तो हाइलम यू सेड नाउ। अच्छा, देखो दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं एक किडनी के हाइलम, इफ दिस इज द किडनी, ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज द हाइलम, ओके। This is the anatomical structure. Now, if I do a cross section, then I find कि ये वाला region है cortex. Let me draw this with yellow color, the cortex. Then I will draw the orange color. ये अंदर में ऐसा दिखता है. This is the medulla और उसके नीचे है papilla. Some amount of papilla, it coincides with the बाहर का जो हाइलम है, अच्छा, उसके साथ थोड़ा सा इस तरीके से कोइंसाइड हो जाए। अच्छा अच्छा, तो कनेक्टेड है ना, एक ही स्ट्रक्चर है। मैंने 3 अलग अलग वैरायटीज ऑफ वे में तुम लोगों को पढ़ाया है और बुक में भी वैसा है, बट आई वांटेड टू मेक सेंस आउट ऑफ कि तुम अलग से एक ही किडनी है और किडनी के हम अलग अलग वैरायटीज पर हैं। कभी हम यूरेथ्रा, किडनी ये सब कर रहे हैं, फिर कभी हम यूरिनरी ब्लैडर ये सब कर रहे हैं, फिर हम पढ़ रहे हैं कि बाहर की तरफ से कितने लेयर है, फिर हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन करके कितने लेयर है। सो इनमें इंटरकनेक्शन क्या है वो समझाने की कोशिश करें। ओके सर, फाइन। देखो हाँ, कि यहाँ पर फिर इस टाइप का ये भी है, एंड सम अमाउंट ऑफ इट आल्सो गेट्स इनटू द पैपिला लाइक दिस, और उसके अंदर फिर ऐसे छलनी भी होते हैं। ये मैंने चार्ट ड्रॉ किया है, यहाँ पर मिलियंस रहते हैं, these are known as millions. Clear? Any doubt you can ask me, feel free. नो सर, ये ब्राउन कलर का आपने क्या ड्राइंग किया? वो तुम्हें बोला ना कि ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर रहता है नेफ्रन, नेफ्रन के अंदर एक्चुअली द नेफ्रन बेसिकली लुक्स लाइक दिस। नेफ्रन ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसके अंदर ब्लड आता है, हाई प्रेशर में ब्लड आता है। अच्छा, जस्ट बिकॉज यू हैव आस्क्ड, कैन आई टेक 2 more minutes? ओके, जस्ट लिसन। नॉर्मली क्या रहता है, देखो, ब्लड को कौन लाता है, यहाँ पर आर्टरी लाता है, ब्लड को कौन ले जाता है, वेन ले जाता है ना। अच्छा, ये जो ब्राउन कलर का ड्रॉ किया है वो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन। ये एक फिल्ट्रेशन यूनिट है जो ऐसे मिलियंस ऑफ फिल्टर 1.2 to 1.3 मिलियन ऐसे फिल्ट्रेशन यूनिट एक किडनी के अंदर है जहां पर एक्चुअली फिल्ट्रेशन होता है।
फिर वहां से फिल्ट्रेट होके ये जो फिल्ट्रेट आउट हुआ वो यहाँ से इस तरीके से 1 ड्रॉप करके निकलता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो नॉर्मली क्या होता है, एक साइड में आर्टरी रहता है, द आर्टरी इट डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज, और दूसरे साइड में क्या रहता है? veins. We have all studied this, but I will just leave you all with the interesting information. Kidney is the only place, अगर बीच में कैपिलरी है तो इस साइड में भी आर्टरी है। Let me draw this. ये भी एक आर्टरी है, ये भी एक आर्टरी है। It is not a vein. वेन है वो बाद में आता है। Why? Have you ever thought? So you know generally क्या होता है, whenever something is dividing into capillaries, capillaries के एक साइड में artery रहता है which brings in the blood, and capillaries के दूसरे साइड में vein रहता है which takes away the blood. But the interesting thing about kidney is inside this Bowman's capsule, inside this filtration unit, blood is being brought by kidney. Then it divides into small capillaries. ऐसे small capillaries में divide कर जाता है, और उसके दूसरे साइड में भी artery ही है. So artery, capillary, artery. It's this type of a structure which is different, which is completely exclusive. ऐसा क्यों रहता है पता है? क्योंकि मुझे ब्लड को फिल्टर करना है। और अच्छा तुम लोग एक चीज बोलो तो, कभी फ्रूट जूस बनाया घर में? Yes, sir. हाँ जी सर। बनाया है। तो देखो फ्रूट जूस क्या करते हैं, मिक्सी में फ्रूट को ऐसा मिक्स कर लेते हैं, करके फिर छलनी के अंदर डालते हैं। तो पूरा क्या छलनी के अंदर डालने से पूरा नॉर्मली नेचुरली नीचे जूस गिर जाता है? ऐसा होता है क्या? No, sir. नहीं सर। करना पड़ता है, फिर जब नहीं निकलता है क्या करते हो? हाथ चम्मच से हाँ, या प्रेशराइज करती हूँ। बिल्कुल। तो तुम लोग को पता है कि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है देन इन वेन्स? Yes, yes, sir. sir. Okay? So I want to do what? I want to filter the blood. तो जो ब्लड कैपिलरी में गया है उसके दोनों साइड में यहाँ पर आर्टरीज है, तो वो क्या करता है, एक हाई प्रेशर सिस्टम बनाता है। क्योंकि अगर सिंपली ब्लड मूव कर रहा है तब वो फिल्टर उतना अच्छी तरीके से नहीं होगा, बिकॉज दोनों साइड में आर्टरीज हैं, हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। सो अ हाई प्रेशर system is created, and hence kidney is the only place inside the entire body where, you know, on two sides of the capillaries you have arteries. So arteries blood को capillary के अंदर आता है, वो वहां पर फिल्टर होता है और फिर दूसरे साइड में आर्टरी से ही निकलता है। So दोनों साइड से एक हाई प्रेशर सिस्टम बनता है, ड्यू टू विच उस प्रेशर के वजह से ब्लड बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर होके निकलता है। क्लियर? अभी Yes, sir. Yes, sir. ऐसे होता है, डोंट थिंक अबाउट इट, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। That I will teach it in some other class if you people are joining. But even if you are not, then you can go through. मैं जब हमारा before lockdown, I was, I had recorded a video. I was teaching in the board. So there you can see, अगर time मिले कभी, so you can see how this actually happens. Very interesting mechanism. Okay, ठीक है? So if you have any doubt, you can ask me, or else I'll end the class. So next day, what is the date you are again going to take the class? See, I to have regular classes. Who is asking? Jutika. But this is a demo class. Here I have talked about excretion, but excretion is not the chapter that I am generally teaching. If you people demand a demo class as a continuation of this class, then you can speak with the coordinator. But generally, I have classes with them regularly, with class 11 students regularly in the ongoing batch. So what you join in the same link, or there is different link? Oh no, you speak with Satya sir over here, who had coordinated this. Okay. Okay. Yeah,